ہم اور آپ جو ہیں وہ زندگی کی وجہ سے زندہ ہیں تو نام ہے، زندہ ہیں تو کام ہے۔ جسم میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں، جسم سے روح نکل گئی تو پھر ہم چاہے کتنے اچھے نام والے ہو، نام سے نہیں پکارا جاتا بلکہ جنازہ اور موتا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ روح اور یہ زندگی یہ وقت سے اور ٹائم سے بندھی ہوئی ہے، اور ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے کچھ رسپانسبلٹیز اور کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو ٹائم کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ ان رسپانسبلٹیز کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے، اور جو اپنا ٹائم یوں ہی ویسٹ کرتا ہے ٹائم اسے ویسٹ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگوں کے ایگزامس بھی آنے والے ہوں گے اور ایگزامس قریب ہوں گے، تو کس طرح سے اپنی اکیڈمکس میں ٹائم کا خیال رکھا جائے اور کیسے ہم صحیح طریقے پر اپنی نالج کو اپنے لیے بینیفیشل بنائیں، فائدہ مند بنائیں۔ اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، کیا اصول دیے گئے ہیں، وہ ہم اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ کیریکٹر کا بھی جو ہم ایکسپریشن کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، یہ ٹائم پہ ہی کرتے ہیں۔ وقت پہ صحیح بات اور صحیح کام کیا جائے تو یوزفل ہوتا ہے، اور بے وقت وہی کام کیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز اذان ہوئی، وقت مغرب کا ہے، نماز مغرب کی پڑھی تو ٹائم یوزفل ہوا۔ نماز پڑھی مگر مغرب کے بعد عصر کی پڑھی تو نہ مغرب ادا ہوئی نہ عصر ادا ہوئی، بے وقت ہو گئی۔ کھانا جس وقت کھانا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو جو ڈیولپ کرنا ہے اس ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اپنی میموری پاور کو ڈیولپ کرنا، اپنی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنا، یہ ایک ٹائم ہوتا ہے۔ وہ ٹائم گزر جانے کے بعد سے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ آج اپنے بیہیویئر کو، اپنی لینگویج کو، اپنی عادت کو ہم درست نہیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ بعد میں کر لیں گے، تو ٹائم گزر جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھیں کہ آج نہیں پڑھیں گے، آج کل پڑھ لیں گے، تو ہو سکتا ہے کل اور پریشانی دوسری آ جائے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ ایک ایک دن کر کے ہم ایگزامینیشن سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ایگزام کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کاش میں نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہوتا تو آج مجھے یہ پریشانی اور پرابلم نہ ہوئی ہوتی۔ یہی سچویشن، یہی حال اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر چیز دکھ رہی ہوگی، دنیا کے پیچھے جو دوڑتے تھے وہ بھی دکھ رہا ہوگا، اور جو مسجد کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے جو دوڑتے تھے وہ بھی دکھ رہا ہوگا۔ ناچ گانے بھی دکھ رہے ہوں گے وہاں پر، اور فیشن اور ہمارے اپنے کارنامے بھی دکھ رہے ہوں گے وہاں پر۔ تب افسوس ہوگا، اور افسوس میں کچھ لوگ کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دیجئے، پھر سے ہم اچھے اچھے کام کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ٹائم گزر چکا، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں، بس اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو چیز اس وقت ہے وہ ٹائم ہے، وقت ہے۔ وقت سے دن اور رات ہوتی ہے، وقت سے ہی انسان اس دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ وقت گزر گیا تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ ٹائم ڈیموکریسی ہے سب کے لیے، 24 آورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو دیا ہے، سب کے لیے۔ ایک جو رول کر رہا ہے وہ بھی 24 آورس رکھے ہوئے ہے، جو اس کے آفس میں جھاڑو لگا رہا ہے اس کے پاس بھی 24 آورس ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب اس کو ڈیولپ کرنے کا وقت تھا، ٹائم تھا، اس ٹائم پر ایک نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تو اسی کلاس میں پڑھنے والا ایک بچہ اور ایک بچی آفیسر بن گیا، اور جس نے ٹائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا، یوں ہی خوش گپیوں میں، خیالوں میں، امیجنیشن میں، فیشن میں، لڑائیوں میں، پروکراسٹینیشن، تساہلی میں اپنے آپ کو جو ڈالے رہا وہ وہیں رہ گیا۔ یہ محنت کرتے کرتے ٹائم نے اس کو اونچا اٹھا دیا، اور یہ آفیسر بن گیا، اور یہ اس کی گاڑی کا کلینر اور ڈرائیور بن کر کے رہ گیا۔ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے،
یہی ایج ہے جس میں آپ اپنے بیہیویئر درست کر سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ بنا سکتے ہیں، اپنی ایبلٹی اور قابلیت کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہی ہائی اسکول کراس کرنے کے بعد پہلا جھٹکا اس وقت لگے گا کہ ایس ایل سی میں تھے، ہائی اسکول میں تھے، اچھی محنت نہیں کیا تو میتھس میں نمبر کم آئے، سائنس میں نمبر کم آئے، تو پتہ یہ چلا کہ سائنس سائڈ والے آپ کو اس کے اندر ایڈمیشن نہیں دیں گے، آرٹس میں چلے گئے، معلوم ہوا کہ آپ کے لیے آدھا راستہ بند ہو گیا کہ میڈیکل فیلڈ میں نہیں جا سکتے. ٹائم کا خیال نہیں رکھا تو آگے چل کر کے میتھس اور اپنی انگلش اور اپنی سائنس فزکس اور کیمسٹری کو اچھا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ پی یو سی میں نیٹ میں بیٹھے، میڈیکل ٹیسٹ دینے کے لیے بیٹھے، اچھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جانا چاہے، رینک نہیں آیا، نمبر نہیں آیا، پھر اسی فیلڈ میں دوسری فیلڈ میں جانا پڑا. پھر افسوس ہوگا کہ کاش ہم پلٹ جاتے، جو پی یو سی میں ہیں وہ چاہیں کہ ہم پلٹ کر کے پھر سے ہائی اسکول میں آ جائیں گے اور ہائی اسکول سے پڑھ کے پھر آگے بڑھیں گے، پھر وہ فیلڈ نہیں ملے پائیں گے، ایج بڑھ جائے گی، کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے، زمانہ کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غم میں ہو. زمانہ ایک اڈل کی طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جذبات نہیں ہوتے. ٹائم از لائک اے ٹیپ آف واٹر، پانی کے بہتے ہوئے نل کی طرح سے ٹائم ہے، اور اس کو جو یوز کر لیا وہ یوزفل ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دیا تو وہ بہہ کر کے کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے یوز کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس کیریکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ کے اندر بہت کلیئرلی بتا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی. والعصر قسم ہے زمانے کی، اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو دیٹس مین امپورٹینس، اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، ہمارے اور آپ کے جیسے ہر طرح کے لوگ گھاٹے اور خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم کی قدر نہیں کرتے، ٹائم پر کیا ہونا چاہیے وہ قدر نہیں کرتے. ابھی آپ نے اگر وضو کا طریقہ نہیں سیکھا تو پھر آپ آفیسر بننے کے بعد جب ٹائم نہیں رہے گا تو کسی حضرت کے پاس بیٹھ کے وضو کا طریقہ نہیں سیکھ سکیں گے. ابھی آپ نے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا کہ دل لگا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو کل آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا کہ آپ نماز سیکھ لیں. ابھی آپ نے قرآن کی سورہ نہیں یاد کیا، 10 سورہ 20 سورہ کم از کم نہیں یاد کیا تو کل کو آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا کہ آپ 10 سورہ یا 20 سورہ یاد کریں، پھر پریشان ہو جائیں گے کہ نماز میں پڑھیں تو کیا پڑھیں. آپ نے تشہد نہیں یاد کیا، آپ نے دعا قنوت نہیں یاد کیا تو پوری زندگی ترستے رہیں گے کہ میں نماز برابر نہیں پڑھ سکتا. آپ نے دعائیں نہیں یاد کی تو پھر بعد میں یاد کرنے کا موقع نہیں رہے گا، ٹائم نکل جائے گا. ایسے ہی اپنے اکیڈمکس میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی ہیلتھ کے اندر اگر ابھی آپ نے خیال نہیں رکھا تو پھر بڑھاپے میں خود بخود یا تو سوتا ہی رہ جائے گا انسان یا تو جاگتے ہی رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ گھاٹے میں، نقصان میں ہیں. مگر نقصان میں کون نہیں ہے؟ 4 شرطیں ہیں، 4 شرطوں پر جس کی زندگی ہے وہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان، کانفیڈنس اور فیتھ اور یقین. اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے پلٹ کر کے، اور اللہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، رسپانسبلٹیز دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارا کانفیڈنس اور یقین بڑھتا ہے. ہم اس سے پھر بینیفٹ لیتے ہیں. ہمارے اس ٹیچر ہیں اور وہ ٹیچر ہمیں میتھس پڑھا رہے ہیں، ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اوپر کہ یہ صحیح پڑھا رہے ہیں یا غلط پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان سے بینیفٹ نہیں حاصل کرتے، ہم ان کے بارے میں شک رکھتے ہیں. لیکن ایک ٹیچر ہیں جن کے بارے میں یقین ہے یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، اور دھیان سے پڑھنا چاہیے ان کی بات اور ان کے پوائنٹس نوٹ کریں تو ایگزام میں کام آتی ہیں چیزیں، تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں اور گائیڈنس دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے اوپر جب یقین رہتا ہے تب یقین کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اور پھر دوسری چیز ہے عمل الصالحات. اب ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ ہمارے آگے کے ہفتے کا ٹاپک ہے. آج کا ہی تھا لیکن اس کے ایگزام کے قریب ہونے کی وجہ سے اس ٹاپک کو کور کیا گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہونا چاہیے. یہ ہمارے کلاس کی بیس ہے. یہ وعمل الصالحات دوسری چیز ہے. وعمل الصالحات کہ صرف جو ہے تھیوری کام نہیں آتی ہے، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے.
صرف جو ہے اگر ہم یہ سوچیں، صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم تھیوری کر لیں گے اور پریکٹیکل کے بغیر ناکام ہو جائیں گے، تو چھوٹی سی اگزامپل کہ آپ میں سے کوئی سوئمنگ کے بارے میں ماسٹرز کر لے، ماسٹرز چھوڑیے، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر لے کہ ندی کے اوپر کیسے تیرتے ہیں، سمندر کے اندر کیسے تیرتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالے، لیکن کبھی ندی میں اترا نہ ہو، ہاتھ پیر اس نے نہ مارے ہوں، تو کیا وہ سمندر میں گرا دیا جائے، ندی میں گرا دیا جائے تو تیر کے نکل جائے گا؟ ڈوب جائے گا۔ اس لیے ڈوب جائے گا کہ اس نے پریکٹیکل کبھی کیا نہیں ہے۔ یہی حال ایمان کا بھی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن پریکٹیکل ہماری زندگی ایمان والی نہیں تھی۔ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ زبان پاک رکھتے تھے، نہ طہارت کا کانسیپٹ تھا، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، پیسہ ہونے کے باوجود حج بھی نہیں کیا، تو پھر یہ زندگی ناکام ہو جائے گی، ایمان کام کا نہیں رہے گا۔ اور جب نیک کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو پھر ہمیں تکلیف بھی ہوگی۔ جو سچائی اس سے ہٹنا نہیں ہم کو۔ لوگ کہیں گے دیکھو یہ ابھی سے ملا بنا ہے، مسجد بھاگا چلا جا رہا ہے، دیکھو ابھی سے آپا بن گئی، یہ دوپٹہ اوڑھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مصلی کے اوپر، لوگ ٹانٹ کسیں گے، لیکن 2 دن 4 دن کے ٹانٹ سے کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی تو وہاں کی ہے۔ اللہ جب پوچھیں گے تو پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تواصوا بالحق، حق پہ قائم بھی رہنا ہے اور دوسروں کو اس کے بارے میں موٹیویٹ بھی کرنا ہے، اور تواصوا بالصبر، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر بھی کرنا ہے اور لوگوں کو اس پر موٹیویٹ بھی کرنا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں ٹائم کو صحیح طریقے پر ادا کرنے والے وہ ہیں جو فیتھ رکھتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، عمل صالح، حق پر قائم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ حدیث میں دیکھیے کیا فرمایا گیا، 2 میجر بلیسنگز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بہت عظیم نعمتیں ہمیں دی ہیں، گڈ ہیلتھ، پراسپیرٹی۔ ایک حدیث ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ہمیں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو گڈ ہیلتھ اور پراسپیرٹی سے غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 بڑی عظیم نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، صحت اور فرصت۔ اچھی صحت ہے اس کو بچا کر کے رکھو، ٹائم پر سو، ٹائم پر کھاؤ، ٹائم پر فزیکل ورک کرو، ٹائم پر مینٹل ورک کرو، رات کو جاگنا، دن کو سونا۔ صحت کی خرابی یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ پراسپیرٹی آج ابھی فرصت ہے، ابھی نہ کمانے کا جھنجٹ ہے آپ کو، اور نہ جو ہے آپ کو فیس دینے کا مسئلہ ہے۔ اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جان کر کے اپنے لیے فیوچر بناؤ، اور یہ دونوں چیزیں کل کو نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایگزام ہو سکتا ہے نیکسٹ منتھ آپ کا ہو، ایگزام ہو سکتا ہے 2 منتھ کے بعد ہو، تو کیوں 1 مہینے اور 1.5 مہینے کی تیاری کے انتظار میں کہہ رہے ایگزام آئے گا تو 15 دن میں پڑھ لیں گے؟ آج ٹائم ہے، پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے 15 دن کے بعد آپ کے گھر میں کوئی ایک فنکشن آ جائے، شادی پڑ جائے، بہن کی شادی، بھیا کی شادی آ جائے، اور آپ کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ یا تو شادی کا مزہ چھوڑو، یا تو اپنا ایگزام چھوڑ کے اپنی لائف برباد کرو۔ کل کو ہو سکتا ہے 15 دن کے بعد سے ٹائم ہی نہ رہے، لاک ڈاؤن لگ جائے، پھر سے نہ ادھر نکل سکے نہ لا سکے۔ اس لیے پراسپیرٹی جب تک سکون ہے، اطمینان ہے، جلد از جلد کر لو۔ حدیث ہے، دوسری حدیث، the 5 things، consider the 5 things as blessing before the 5 things، اغتنم 5 قبل 5، حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 1، youth before old age، this time you have power، you have courage، you have zeal، کیونکہ you have time، 10 years، 11 years، 15 years، 18 years، 20 years، 25 years، 30 years، ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ ایج ہے تمہارے پاس۔ یوتھ ہو، جوان ہو تو کام کر جاؤ، تیاری کر جاؤ کہ جب تم اولڈ ایج میں جاؤ تو اولڈ ایج تم کو ستائے نہ۔ پھر اتنا کریج اور اتنی ہمت پیدا کر لو۔ ابھی آپ سکون سے رہو گے، کیا بھی نہیں، کہاں تو بھی کما لیتی، جا کر گیرج میں کام کر لیتے۔ گیرج میں کام کرانے والا کب تک کام کرائے گا آپ سے؟ جب تک آپ کے پاس پاور ہے۔ جہاں کمزور ہو گئے، گیرج میں کوئی ایسا دیکھا ہے کوئی 80 سال اور 90 سال کا بڈھا جا کر کے کام کرتا ہے، لوہا کوٹتا ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتا، نکال بھگایا جائے گا، پھر کون دیکھے گا اس کو؟ آج اگر آپ نے آپ کو اسے تیار کر لیا کہ 10 گیرج کے آپ مالک بن گئے، انجینئر بن گئے کار کے، یہ گیرج کے صفائی والے نہیں، بڑے انجینئر بن گئے، تو آپ کما کر کے اتنا رکھ سکتے ہیں کہ بڑھاپا آئے تو آپ کو ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ہیلتھ بیفور سکنس، آج یو ہیو ہیلتھ، تمہارے پاس ہیلتھ ہے، اس کو بچاؤ،
हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, हेल्थ एक बड़ी दौलत है, उसको बचाओ। आज अपनी हेल्थ का सही इस्तेमाल करो, सिकनेस आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, अल्लाह सबको बचाए। एक तो दुआ करो बीमारी से बचाने के लिए, और दूसरे हेल्थ को बचाने की फिक्र करो। वेल्थ बिफोर पॉवर्टी, आज तुम्हारे पास वेल्थ है, हमारी हेल्थ भी एक वेल्थ है, हमारे पास टाइम भी एक वेल्थ है। टाइम इज ए वेल्थ, प्रेशियस वेल्थ, सबसे बड़ा अजीम तोहफा है। और गुर्बत के आने से पहले पहले अपनी वेल्थ को बचाओ, तैयारी करो। लीजियर बिफोर एंगेजमेंट, आज सुकून के साथ हो, इत्मीनान के साथ हो, तो आज अपना काम कर डालो। कल एंगेजमेंट में फंस गए, यानी अपनी मसरूफियत में फंस गए, किसी काम में फंस गए, जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, मालूम हुआ कि एग्जाम से पहले खुदा न खास्ता घर में किसी को परेशानी पेश आ गई, तो क्या कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। आज तैयारी करके रख लो। लाइफ बिफोर डेथ, मौत से पहले पहले तैयारी कर लो, मौत आने के बाद से कुछ नहीं हो पाएगा। लोग फौरन फिक्र में होंगे कि फौरन कब्रिस्तान में पहुंचा दे जाकर के, नहीं रोकेंगे कोई, कितनी भी मोहब्बत करे, महीना 2 महीना कोई नहीं रख सकता, जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। हदीस में आता है इन 5 चीजों का ख्याल रखो। टाइम इज ए लाइफ, वक्त ही जिंदगी है, जिंदगी ही वक्त है। जिंदगी है तो वक्त है हमारे पास, और वक्त है तो जिंदगी है हमारे पास। निकल गया तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि हाउ हार्ड यू वर्क और हाउ मच टाइम यू टेक। इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कहा जाता है कि कितना तुम मेहनत कर रहे हो और कितना टाइम तुम ले रहे हो, कितना वक्त तुम्हारे पास है। लुक बिजी डू नथिंग, अगर इस तरीके से तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, लुक बिजी डू नथिंग की तरह से जिंदगी गुजर रही है, तो कोई मतलब नहीं। यहां भाग रहे, वहां भाग रहे, ये देख रहे, वो देख रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, नहीं। हाउ मच यू अचीव, कितना तुमने हासिल किया है। 10 साल तुमने हाई स्कूल में कितने मार्क्स तुमने हासिल किए, ये देखेगा कोई। ये नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मोटे मोटे पेपर लिखे, तुमने नीट क्वालिफाई कर लिया, ये दिखेगा। ये कोई नहीं दिखेगा कि तुमने कितना पढ़ा है। इसलिए पढ़ो, ऐसे सिस्टम के एतबार से पढ़ो। द प्रेजेंट, आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस एक कहते हैं। प्रेजेंट किसको कहते हैं? अब और अभी को कहते हैं। जो वर्तमान काल होता है उसको कहते हैं, और प्रेजेंट गिफ्ट भी कहा जाता है। वाई, क्यों? बिकॉज यस्टरडे इज हिस्ट्री, वो गुजर गया, तारीख बन गई, पलट कर नहीं आएगा। लास्ट ईयर जो तुम्हारे मार्क्स थे वो पलट कर नहीं आने वाले। लास्ट ईयर जो तुम्हारा काम था वो पलट के नहीं आने वाला। टुमारो इज अ मिस्ट्री, कल क्या आएगा पता नहीं। लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा, कल तुम्हारी हेल्थ कैसे होगी, घर में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई दैट कॉल इज द प्रेजेंट। आज जो है, अब जो वर्तमान काल है, ये दैट इज गिफ्ट इन आवर हैंड, ये गिफ्ट है हमारे हाथ में। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी के पास 3 किस्म का वक्त होता है। एक वो वक्त जो गुजर गया, उसको पता ही नहीं कि कैसे गुजर गया। एक वो वक्त है जो अभी आया नहीं है, उसको पता नहीं है कि आएगा भी या नहीं आएगा, या किस हालत में आएगा। एक वो वक्त है जो हमारे हाथ में है। इसलिए आदमी को चाहिए कि इस वक्त को यूजफुल बना ले। इस तरह से अगर आने वाला वक्त नहीं भी मिला तो उसको अफसोस नहीं होगा कि मेरा पुराना वक्त ज़ाय हो गया, मैंने वक्त टाइम वेस्ट कर दिया। That's why they called it the present. That's why they called it the present. इसीलिए जो है लोग इसको प्रेजेंट कहते हैं। 86,400. Picture this, imagine this. Each day your bank deposits 86,400 rupees in your checking account. There is just in one catch. You have to spend it all one day. You can't carry over any money to the next day. सुबह होते ही होते तकिए के नीचे 86,400 मिल जाता है। एक ही दिन में खर्च करना है, बचा नहीं सकते, एक ही दिन में खर्च करना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी नहीं होगा जो सोता रहे 10 बजे तक, 12 बजे तक सोता रहे, फिर उसके बाद से 2 बजे निकले और जो चाहे कि हम पैसा अपना खर्चा कर लें। कोई नहीं होगा। अगर ये हो जाए तो लोग सुबह सुबह अर्ली एकदम इंतजार में बैठे रहेंगे कब पैसा आए और हम लेकर के भागे। जब ये मिजाज होता है तो फिर हमें 24 आवर्स के अंदर भी तो 86,400 दिए जाते हैं सेकंड्स। 24 आवर्स के अंदर 86,400 सेकंड्स दिए जाते हैं। अगर हमने इसको यूजफुल नहीं बनाया तो ये चला जाएगा। गया वक्त हाथ आता नहीं, मरा बैल घास खाता नहीं।
اللہ तबारक व तआला ने सिस्टम ऐसा बनाया कि रुक नहीं सकता, जमाना रुकता नहीं किसी के लिए, बदलने वाले जमाने को खुद बदल देते हैं, जमाना बदलता नहीं किसी के लिए। जमाना गलत नहीं होता, हम और आप गलत हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग और हमारी सोच गलत हो जाती। तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारा टाइम कैसे वेस्ट होता है और उसको वेस्ट होने से बचाएं, अपनी दौलत को बचाएं। 86,400 रुपीज हम यूं ही ऐसे फेंकते नहीं रहते हैं, हम ऐसे छोड़ कर नहीं पड़ जाते, अरे यार चलो यार देखा जाएगा, नहीं, हम उसको हिफाजत से रखते हैं, लपेट लपेट के रखते हैं, पानी न लग जाए, कोई पॉकेट से निकाल न ले जाए, कोई छीन न ले जाए, उसकी हिफाजत करते हैं। ये टाइम उस दौलत से भी ज्यादा प्रेशियस है। और कौन सी माइनर टाइम चीजें होती हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट कर देती हैं? माइनर टाइम वेस्टर्स क्या है? नंबर 1, इंटरप्शंस वी फेस ड्यूरिंग द डे। हम जो इंटरप्शंस फेस करते हैं, जो रुकावटें फेस करते हैं, ये हमारे टाइम को ज़ाय कर देती। इन इंटरप्शन से अपने आप को बचाना चाहिए। इसीलिए जब पढ़ने के लिए आप बैठें तो पढ़ने के लिए ये देखें कि कौन से टाइम में हमको पढ़ना चाहिए जब हमारे दिमाग को सुकून हासिल हो। हंगामे और शोर के दरमियान में या टीवी के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे चैटिंग भी चल रही है, यहाँ पे पटाखे भी फूट रहे हैं, उसके अंदर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो मेमोरी हमारी जो है वो पूरी तरह कैच नहीं कर पाएगी। बीइंग अ स्लेव ऑन टेलीफोन, यानी मोबाइल के ऊपर गुलाम बन जाना, इसके जब देखो तब जो है उस पर लगे हुए हैं। अब्बा कितना भी डांट रहे हैं, अम्मा कितना भी डांट रही हैं, कभी जो है चादर भी छुपा करके देख रहे हैं, कभी जो दोस्तों के साथ जा करके देख रहे हैं, क्या मिल जाएगा? ये इसके गुलाम हमेशा गुलाम रहेंगे। पूरे दिन के अंदर 80% हम इसका गुलाम बन करके रह गए तो 20% में जिंदगी थोड़ी गुजरती। हाँ, जरूरत के वक्त 20% का यूज किया जा सकता है सही काम के अंदर। इस वक्त जो इसके गुलामी, जो आप अगर आप हाथ में इसके एडिक्शन बन गए, ये भी एक एडिक्शन में शुमार होता है। अगर इसके आप एडिक्शन बन करके रह गए तो याद रखिए कि आप लीड नहीं कर पाएंगे, आप जो है बहुत अच्छे पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे। जिसके हाथ में बुक होगी, जिसके हाथ में किताब होगी, उसको टाइम नहीं रहेगा। जिसके हाथ में ये होगा, उसको बुक देखने का, अपने नोट्स देखने का टाइम नहीं रहेगा। अगर मॉरल वैल्यूज इतनी खराब हो गई हैं कि क्लासरूम में भी जाकर के छुपा करके डेस्क के नीचे से उस्ताद टीचर पढ़ा रहा है और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो याद रख लेना चाहिए कि फिर भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिलेगी। इतना आसान नहीं होता है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इसलिए इसके गुलामी छोड़िए, इसका एडिक्शन छोड़िए। अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड विजिटर्स कभी कभी हमारे वक्तों को बहुत बर्बाद कर देते। यहां पे एक बात याद रखिए, हमारे मजहब इस्लाम में मेहमान की इज्जत करना, ताजीम करना मुसलमान की आइडेंटिटी है, मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन इस्लाम में ये भी एक मॉरल वैल्यूज में है, अखलाकियात में है कि मेहमान को चाहिए कि हम किसी के मेहमान बन रहे हैं तो हम ये देख करके जाएं कि उसके यहाँ जाना मुनासिब है या नहीं है। मेहमान आ गया तो हम इज्जत करेंगे, लेकिन मेहमान हम बनने जाएं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आजकल इसका जमाना है, पूछ लेंगे भाई हम आ रहे हैं, मुनासिब है या नहीं। इस घर में बच्चों का एग्जाम चलने वाला है, बोर्ड के एग्जाम चलने वाले हैं, हम जाके धमक के वहां पे बैठ जाए 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, नहीं क्या भी नहीं, घूमने दो। आज हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा नुकसान ये होता है। 9th और 10th में बच्चा है, मालूम हुआ कि फैमिली वालों ने प्लान बना लिया कि कावेरी में पानी आया हुआ, चलो घूम के आएंगे, स्कूल छोड़ा के लेके चले गए। फला दरगाह पे उर्स लगा हुआ है, स्कूल छोड़ा के लेकर चले गए। दादा के पहाड़ पर लेकर के चले गए, तो कभी बंडीपुर जंगल लेकर के चले गए। बड़ा मजा आ रहा है खेलने में, आज मजा आ रहा है, कल को जब ये कमा के देंगे नहीं, जब बिजली का बिल और सिलेंडर का बिल और 100-150 रुपए किलो टमाटर और 100-125 रुपए लीटर पेट्रोल, जब उसके लिए पैसा नहीं होगा तो फिर ये क्या करेंगे? ससुराल के भरोसे बैठेंगे, फिर मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, फिर क्लैश होगा। यहां से यहीं से खराबी पेश आती है। लिहाजा आप घूमना फिरना ये सब टाइम के ऊपर है। टाइम रहेगा तो पूरी दुनिया घूमेंगे। आप इंशाअल्लाह अच्छे ऑफिसर बन गए, आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख रुपए अर्निंग आपकी हो गई, तो फिर आप कावेरी क्या, आप जाइए नियाग्रा फॉल घूम करके आइए, आप न्यूजीलैंड जाकर के घूम के आइए, आप जो है सऊदी अरब और दुबई जाकर के घूम करके आइए। आपको छोटी जगह से कोई मतलब नहीं। लेकिन आज याद रखिए, जो एकेडमिक के टाइम में जो एज ए स्टूडेंट जो आज घूमेगा वो जिंदगी भर घर में बैठा रोएगा।
جو آج گھر میں بیٹھ کر کے پڑھ لے گا وہ زندگی بھر عیش کرے گا اور گھومے گا. کتنا سال ہے؟ صرف 5 سال بس. اگر آپ پی یو سی کے اندر ہیں تو، اگر ہائی اسکول کے اندر ہے تو 7 سال کی قربانی دیجئے. اما ابا کو چاہیے، اگر یہ بات گھروں کے اندر مائیں سن رہی ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات کر، نہیں دادی کرنے لے جانا، نانی کرنے لے جانا، خالہ کی بیٹی کی شادی ہے نہیں گئے تو کیا. ایک تو رسومات کو کم کیجیے. آج ہندوستان کے اندر مسلمان سب سے بڑا ان پڑھ ہے، سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ مسلمان کا ہوتا ہے. پورے شہر کے اندر 2000 گیریج اگر مان لیے جائیں، ان 2000 گیریج کا جا کے سروے کر لیجئے تو ان 2000 گیریج کے اندر آپ کو کم سے کم 4-5 ہزار مسلمان بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میلے کچیلے کپڑے کے اندر نظر آئیں گے، اور پھر شام کو اپنا بال کاٹ کر کے گاڑی لے کر کے نظر آئیں گے. جب ان کی عمریں 50 سال ہوں گی تو ان کو کون کما کر کے دے گا؟ انہی کے ساتھ کلاس میں پڑھنے والا برہمن بچہ، جینی بچہ آج دیکھیے کتنے ترقی کرتا ہے. گیریج میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کون سی حکومت روکتی؟ آج اتنا تعصب ہونے کے باوجود بھی پڑھنے والے بچوں کو مقام مل رہا ہے، رینک مل رہا ہے. کتنی مرتبہ جو ہے فرسٹ رینک ہولڈر مسلمان ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ گھومتا نہیں ہے، شادی بیاہ کی مجلسوں میں ہفتے بھر کے لیے عیش اور مناتا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے ٹائم کو ویسٹ کر دیتی ہیں، اور ٹائم جو ہے ہمیں برباد کر دیتا ہے کیونکہ ہم نے ٹائم کو برباد کیا. نیڈلیس رپورٹس، جنک میلز، میٹنگ وداؤٹ ایجنڈا، اس میں سب سے مین چیز جو اسٹوڈنٹس کے لیے نمبر 1 ان ایکسپیکٹڈ ان وانٹیڈ وزٹس جو ہے، گھومنا پھرنا، مستیاں کرنا. چہارشنبے کو یہاں جائیں گے تو جمعرات کو یہاں جائیں گے، کتنے دن کے لیے؟ نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، شادی وغیرہ کے فنکشنوں میں سب سے زیادہ توہین کی جاتی ہے، اللہ کی توہین کی جاتی ہے. ایک نماز نہیں پڑھی جاتی تو پھر اللہ گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب بچوں کو اگر اٹھانا ہے تو فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھا کر کے کہو بیٹا دعا کرو اس گھر کے واسطے برکت آن دے، مرض نہیں آئے، قرض نہیں آئے، دشواری اور پریشانی نہیں آئے. یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا پھرتا ہے. اور اسٹوڈنٹس، نوجوانوں، بینگ اے سلیو آن ٹیلیفون، اس کے غلام بن گئے نا تو پوری زندگی غلامی بن کر کے رہ جاؤ گے. یہ تھی مائنر ٹائم ویسٹرز. اس کے بعد دیکھیے میجر ٹائم ویسٹرز، جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹائم کو برباد کرنے کے سلسلے میں زہر ہے. دا پوائزنس تھنگس جو کہی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پروکریسٹینیشن، سستی. نکو جان دے کر تو آتوں، یہ جو مینٹلٹی پیدا ہو گئی اگر نا تو پھر جو ہے کوئی نہیں بچا سکے گا. حضرت جبریل بھی آ کے نہیں بچا سکیں گے. یاد رکھیے گا انسان کے دستے ذرّی سے قدرت بھی نمایاں ہوتی ہے. تقدیر انسان تدبیر سے لکھتا ہے. انسان جب ایکٹیو رہتا ہے، ہر چیز کو ٹائم پہ کام کرتا ہے. معلوم ہوا کہ کالج سے اور اسکول سے آئے، بیگ یہاں پھینکا، جوتا یہاں پھینکا، پین وہاں پھینکا، کاپی یہاں پہ پھینکا، شام کو کام کرنا ہوا تو 1 گھنٹہ اس کو کھوجنے میں گزر گیا. پھر سستی. پروکراسٹینیشن از دا تھیف آف ٹائم. افریڈ ٹو ڈیلیگیٹ، ہر کام خود کرنے بیٹھ جائے. کپڑا لینا بھی تو اپنے ہی چلے جانا ہے، چھوٹا سا پن لینا ہے تب بھی اپنے چلے جائے. نو وانٹنگ ٹو سے نو. فیشن کے سامنے، اپنی اس غلامی کے سامنے، میچ اور گیمز کے سامنے، ٹی وی کے پروگرامز کے سامنے نو کہنا سیکھو. نو نہیں، میں آج نہیں دیکھتا. آج نہیں دیکھا تو کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا؟ آج تم نے ٹی وی کے پروگرامز نہیں دیکھا، گیمز نہیں کھیلے تو کیا تم بے عزت ہو جاؤ گے؟ آج اگر تم نے شوز نہیں دیکھے تو کیا تمہاری صلاحیت کم ہو جائے گی؟ ہاں، آج تم نے دیکھا، ہو سکتا ہے تمہارا ہوم ورک پورا نہ ہو سکے. آج تم نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آج کی تیاری سے ایگزام میں تم رینک لے سکتے تھے، وہ ختم ہو جائے. اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بہت ہوا تو میوٹ کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، بس اس کے بعد وہاں پر فرشتے انتظار کر رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہم جو ہیں پروگراموں میں لگے ہوئے ہیں، نہ یہاں کا ملا نہ وہاں کا ملا. لو سیلف اسٹیم. کیوں ڈرتے ہو؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کس چیز کا ڈر ہم کو؟ پرابلم وتھ آبجیکٹیوز اینڈ پرائورٹیز. آبجیکٹیوز طے کرو، دینے والا اللہ ہے. پیسوں کی کمی سے کوئی شخص ان پڑھ کبھی نہیں رہتا. یاد رکھیے گا، پیسوں کی کمی سے کوئی شخص ان پڑھ نہیں رہتا. اگر ان پڑھ پیسوں کی کمی سے کوئی ہوتا تو اے پی جے عبد الکلام سائنٹسٹ آف انڈیا اینڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا نہ بنتے. پیپر بیچ کر کے اگر وہ فیشن میں رہتے اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے اور فیشن میں گھومتے، بال جھاڑ کر کے گھومتے تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتے تھے.
गुर्बत में रह करके, नाव पे जा जाके पेपर बेच करके करेज और हिम्मत के साथ एक्टिव होकर के पढ़ा, तो आज मुसलमान होने के बावजूद भी उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मकाम मिला और सबसे बड़े साइंटिस्ट करार दिए गए। तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजारें। ये चीजें हैं जो 5 शैतान की शक्ल में हमारे घरों के अंदर, हमारे अंदर घुस चुकी हैं। ये अच्छी भी चीजें हैं, जैसा कि शेक्सपियर ने लिखा है हैमलेट के अंदर, नथिंग अंडर द स्काई इज गुड एंड और रॉक बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जैसी चीजों को यूज करते हैं, वैसे चीजें जो हैं हमारे लिए काम करती हैं और वैसे जो है उसका असर हमारे ऊपर होता है। हम इंटरनेट से नमाज भी सीख सकते हैं, तजवीद भी सीख सकते हैं। हम इंटरनेट से अपने सब्जेक्ट का पूरा ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन यही इंटरनेट से जहन्नम का रास्ता भी जाता है। इसी इंटरनेट पर हम गए, खान्स एकेडमी में गए, और खान्स एकेडमी में जा करके प्रोफेसर सलमान खान, जो खान्स एकेडमी को चलाने वाले हैं, उनके ट्यूशन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमने लिए। तो उनके ट्यूशन्स इतने अच्छे होते हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं, वीडियो और ऑडियो ट्यूशन्स, कि उसके जरिए से हम जो है अपनी सलाहियत अच्छी कर सकते हैं। और इसी इंटरनेट के ऊपर जा करके वो नाचने गाने वाले सलमान खान के पीछे पड़े तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जहन्नम का रास्ता आसान हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट, हर वक्त एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये आता है, ये ले लो, ये ऑफर, वो ऑफर। मालूम हुआ कि अम्मी जान की बात हमें अच्छी नहीं लगती, अमेजॉन की बात बहुत अच्छी लगती है। अम्मी जान बुरी लगती है, अमेजॉन के ऊपर जाके खूब सर्च कर रहे हैं, यहां से कर्जा ले रहे हैं, वहां से कर्जा ले रहे हैं, ये टी शर्ट हो, ये बीइंग ह्यूमन हो, ये ब्रेसलेट कितने दिन का रहेगा? एक दिन वक्त आएगा कि वो भी बेच के खाना पड़ेगा। फैशन, कपड़े से इंसान की पर्सनालिटी नहीं पहचानी जाती। अरबी का एक पोयम है कि लैसल जमालु बि अस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी, कि जो कपड़े हम पहनते अच्छे ना, इससे हम खूबसूरत नहीं दिखते। हमारी खूबसूरती, हमारी ब्यूटी जो है वो हमारे नॉलेज की है, इल्म की है, बिहेवियर की है, और हमारे अखलाक की है, और अदब की है। टीवी के शोज क्या देते हैं हमको? कभी करोड़पति का शो देख रहे हैं, कभी औरतें सास बहू के शो देख रही हैं, क्या होती है? उस किसी एक शो के अंदर आप बता दीजिए कि सास बहू की लड़ाइयां हमारे घरों में नहीं आती। सेम वैसे ही कॉपी होता है घर के अंदर भी। घंटे बजते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, और हमारे घरों में हम सब बैठे हुए उसे देखते हैं। पूजा में शामिल होने का, शिर्क करने का अजाब मिलता है, शिर्क है वो। फिर सोशल मीडिया हर वक्त जो है क्या स्टेटस डाला, क्या डीपी डाला, कैसे सेल्फी ले लिया, और इसकी गुलामी जो है ये शैतान है। और इसी शैतान के फंदे में फंस करके हम पूरा टाइम जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और देखा जाए तो हमारी ये पिक्चर नजर आती है। इस तरह से हम नजर आते हैं। अगर हमारी भी पिक्चर, कोई मशीन ऐसी आ जाए, कोई कैमरा आ जाए जो हमारी पिक्चर ले ले, तो हमें भी ऐसा दिखता है कि हम कैसे जकड़े हुए हैं इसके अंदर। हमारा पूरा का टाइम ये पूरा हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और इस किस्म की चीजें घसीट करके हमें तबाही के दहाने पर लेकर के जा रही हैं, जो गिरा करके लेंगे। हम इस तरह से जकड़े हुए, आंख खुलती है सुबह सुबह, आंख खुलने के बाद हमारी आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद घर में अम्मी नजर नहीं आती, अब्बा नजर नहीं आते, तो कोई फिक्र नहीं होती कि अम्मी कहां चली गई, अब्बा कहां चले गए। एक बार नहीं पूछते, लेकिन तकिए के नीचे मोबाइल नजर नहीं आया तो ऐसा हैरान हो जाते हैं कि कहां चला गया वो। खोजते हैं कि अरे वो मेरा कहां गया, मेरा मोबाइल कहां गया, मेरा मोबाइल कहां गया। और अगर किसी ने, भाई ने, छोटे भाई ने, छोटी बहन ने हटा दिया या उसके हाथ में दिख गया, तो फिर मारने पर और उसको तुलाते। ये अगर जिंदगी है तो ये जिंदगी हमें गुलाम बना करके रख देगी। टाइम हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा, और कितने दिन, जैसे ही एज हमारी 20 के बाद जाएगी तो फौरन पूछने लगेगा क्या प्रोफेशन कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। शादी की उम्र होगी तो पूछा छोकरा क्या कर रहा है, छोकरी क्या कर रही है। 40 साल होगी तो क्या कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो। 50 साल की उम्र हो गई तो फिर बच्चों की शादी ब्याह की फिक्र आ जाएगी। टाइम बर्बाद हो जाएगा, और सब टाइम अभी है हमारे पास वक्त, अभी नहीं संभले तो फिर कल को नहीं संभल पाएंगे, और कोई संभालने के लिए भी नहीं जाएगा। आपको रोकती क्या चीजें हैं? आज जो चीजें आपको रोकती हैं, जो टाइम को वेस्ट करवाती हैं, वो क्या है? निगेटिव थॉट्स। सबसे पहले दिमाग से निगेटिव थॉट्स निकालो। सब दुश्मन हैं आपके, ये निकालो।
सबसे बड़े दुश्मन हम हैं, सबसे बड़े दुश्मन हम हैं अपने आप के, जो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। रात के 2 बजे तक जागना, दिन के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सोना, यह अपने आप से सबसे बड़ी दुश्मनी है। बाहर के दुश्मन को आने की कोई जरूरत नहीं। निगेटिव थॉट्स, गलत ख्यालात निकालो। अब्बा मोहब्बत नहीं करते, अम्मा मोहब्बत नहीं करती, भैया नहीं चाहता, ये निकालो दिलो दिमाग के अंदर से सबसे पहले। और अगर ये निगेटिव थॉट्स हमारे दिलो दिमाग के अंदर रही तो कभी हम वक्त सही नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। जब हमारे साथ अल्लाह है तो फिर क्या चीज की कमी है? और अल्लाह तो हरदम हमारे साथ है ना। अल्लाह ने तो हमसे कहा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये जो तुम्हारी अंदर की रगे एहसास है ना, मैं उससे ज्यादा करीब हूं। अल्लाह जब हमारे साथ हर वक्त है तो फिर बुरा क्यों सोचना? निगेटिव पीपल। दूसरी चीज जो हमें रोकती है वो गलत किस्म के दोस्त रोकते हैं। क्या रे बहुत बड़ा पढ़ने वाला बने, प्रोफेसर बनेगा क्या, डॉक्टर बनेगा क्या? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। जिस तरह से सांप और बिच्छू और शेर से इंसान भागता है, इसी तरह से गलत फिक्र रखने वाले दोस्तों से भाग जाइए आप। कुरान में भी खुद कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अच्छे लोगों की दोस्ती अख्तियार करो, अच्छे लोगों का साथ अख्तियार करो, अच्छे लोगों का साथ अख्तियार करो। तो बुरे दोस्तों से भाग जाओ, वरना ये बुरे दोस्त तुम्हें बुराई में डाल देंगे, चाहे कितना अच्छा लगता हो उनके साथ। फिर तीसरी चीज, लो सेल्फ स्टीम। अंदर हिम्मत क्यों नहीं करते? जब ईमान कलमा तुम्हारे दिल के अंदर है, इतनी बड़ी चीज है, सूरह फातिहा तो कम से कम होगी ना तुम्हारे दिल में। 2-4 सूरतें, 10 सूरतें तो दिल में होंगी ना। तो कुरान की आयतें हैं, और यही कुरान को अल्लाह ने कहा है कि अगर इसको हम पहाड़ पे नाजिल कर दे तो पहाड़ इसके बोझ से दब के फट जाता। तुम्हारे दिल के अंदर ये कुरान है, तो फिर लो सेल्फ स्टीम क्यों डर नहीं होता? क्या को पढ़ना नहीं दिल लगता? क्यों नहीं लगता? मांगो अल्लाह से। अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। फिर चौथी चीज है फियर ऑफ फेल्योर। फेल होने का डर कैसा? इंसान सुबह से शाम 10 मरतबा फेल होता है, लेकिन क्या 10 मरतबा फेल होकर के जिंदगी से भाग जाता है? सुबह सुबह हमारा मिजाज बनता है कि मुझे आज जो है बिरयानी खाना है, लेकिन बिरयानी नहीं मिलती, फेल हो गए हम। तो क्या हम उसे खाना ही छोड़ दें? हर चीज हमारी सुबह सुबह ख्वाहिश होती है कि हम उठें तो हमें फला चीज मिले, नहीं मिलती, फेल हो गए हम। लेकिन क्या उस फेल से हम जिंदगी से भाग जाते? ऐसे सब्जेक्ट एक बार नहीं समझ में आया, आज नहीं समझ में आया, कल समझ में आएगा, कल नहीं परसों समझ में आएगा। ये डर नहीं रखना। और इसी तरह फियर ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, ये भी आपको रोकता है। क्लास में अरे नहीं मैं सवाल पूछा तो मेरा साथी क्या बोलता, मेरे साथी हंसते हैं, नहीं ये मत लाइए। हंसेंगे तो क्या कर लेंगे? वो कब कितना हंसेंगे, कितने दिन हंसेंगे, कितना दिन टॉन्ट कसेंगे? मना किया गया। पिछली क्लास में आपके सामने बात आई थी, सूरह हुजरात की रोशनी में इसके पहले बात आ चुकी। किसी के ऊपर टॉन्ट मत कसो, किसी के ऊपर मत हंसो, मना किया गया, इस्लाम ने मना किया है। और कोई हंसता है तो क्या चलेगा? हंसेगा तो क्या हमारी सलाहियत कमजोर हो जाएगी, हमारी जिंदगी कमजोर हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। वो हंसेगा तो हंसने का अजाब झेलेगा और वो गुलाम का गुलाम रह जाएगा। आप सवाल पूछ करके टीचर से आपको जवाब मिल गया तो हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप बेहतर तरीके पर लिख सके। तो निगेटिव थॉट्स को निकालिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, निगेटिव लोगों से दूर भागिए और लो सेल्फ स्टीम मत लाइए। अल्लाह को यकीन है आपके ऊपर कि आपको मोमिन बनाए, ईमान वाला बनाया है और अल्लाह ने बड़ा मकाम आपको दिया है। और फेल होने से मत डरिए और रिजेक्शन से मत डरिए। एक्शन प्लान तैयार कीजिए। एक्शन प्लान क्या है? नंबर 1, इंटर द रिस्क जोन। हौसला रखो, हिम्मत करो। कैसे? नहीं समझ में आएगा। आपके मोबाइल का एक फंक्शन नहीं समझ में आता है तो आप जा करके उसका ट्यूशन देखते हैं, बार बार उसको ट्राई करते हैं। इस मोबाइल के अंदर जितने फंक्शंस हैं उसका 10% भी हम लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, करते करते आ जाता है। तो जिस सब्जेक्ट को एक ही ABCD तुमने बचपन से पढ़ी है, जिस मौजू को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अम्मा ने बचपन में तुम्हें सिखा दिया है, तो उसके आगे की चीज कैसे नहीं समझ में आ सकती? क्यों नहीं नमाज समझ में आएगी? क्यों नहीं कलमा समझ में आएगा? क्यों नहीं सूरह याद हो पाएगी? क्यों नहीं सब्जेक्ट याद हो पाएगा? इंटर द रिस्क जोन, रिस्क लो।
जो रेस में दौड़ेगा वही गिरेगा ना, जो क्रिकेट की फील्ड में जाकर बैटिंग करेगा वही तो बोल्ड होगा ना, जो बाहर बैठ के ताली बजाएगा वो बोल्ड होगा, जो बैटिंग करेगा उसको अगला चांस फिर मिलेगा, जो दौड़ेगा उसी को ठोकर लगेगी, जिसको ठोकर लगेगी वही खड़ा होगा फिर संभल करके दौड़ेगा, और जब संभल करके दौड़ना सीख जाएगा तो सबसे आगे जाएगा। जो इस डर से कि नहीं ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे तो कभी नहीं दौड़ेगा और कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा। नंबर 2, कम्युनिकेट एंड क्लैरिफाई वैल्यूज। आपको क्या चाहिए कम्युनिकेट करो, बात करो, टीचर से बात करो, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही, उलझन है, माँ बाप से बात करो, अपने बड़ों से बात करो। चुप रह करके बैठ गए, चुप मुंह गिरा के बैठ गए, कंबल में मुंह छुपा करके बैठ गए, तो फिर कब तक कोई पूछेगा? आज पूछेगा कल छोड़ देगा। मुंह गिरा के रहोगे, ना कोई खाने को पूछेगा, ना दाने को पूछेगा, जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। माँ बाप हैं तो पूछ रहे हैं, माँ बाप नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। एनालाइज योर यूज ऑफ, इसलिए मुंह गिरा के मत रहो, बोलना चाहिए। बोलोगे तो क्या होगा? गलत होगा, सही किया जाएगा, सही होगा तो उस पर अमल किया जाएगा। नहीं बोलोगे तो जो दिल में आएगा इंसान सोच लेगा उसके बारे में। एनालाइज योर यूज ऑफ टाइम 80 and 20, ऐसा सिस्टम बनाओ कि 80% टाइम तुम्हारा यूजफुल इस्तेमाल होना चाहिए। डोंट रिएक्ट टू अर्जेंसी, फट से किसी चीज के बारे में रिएक्ट मत करो। फट से रिएक्ट करने वाले अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी और गोली मार लिया कर लेते हैं। फौरन भड़क मत जाओ, किसी बात पे आ गए प्लेट फेंक देना, खाना फेंक देना, खाना छोड़ देना, मैं नहीं खाता। ऐसी गलती कभी मत करना। खाने से क्या नाराजगी? खुदा ना खास्ता खाने ने हमें छोड़ दिया तब। कितने करोड़पति ऐसे हैं जो सोने की प्लेट और सोने की चम्मच रखे हुए हैं, मगर सोने की प्लेट और सोने की चम्मच में एक चम्मच शक्कर नहीं खा सकते। खाएंगे तो जहर बन जाएगा। खाने से कभी नाराज नहीं होना, अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह नाराज हो गया और बंद कर दिया हलक को कि नहीं जा सकता है, तो कुछ भी कर ले डॉक्टर नहीं होने वाला है। अल्लाह बचाए सबको। अर्जेंट किसी चीज को रिएक्ट मत करें, सोच समझे। डील विथ वन पेपर ओनली वंस, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप, एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। एक्शन प्लान में अलोकेट योर टाइम रिलेटेड टू सलाह, जब तक कि नमाज के मुताबिक अपने टाइम को हम अलोकेट नहीं करेंगे, हमारा वक्त सही नहीं इस्तेमाल होगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे और नुकसान में रहेंगे। चाहे किसी तरह से बना लें, दुनिया के एतबार से अपने एकेडमिक्स रूल बना लें, आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आखिरत चली जाएगी। लेकिन नमाज के मुताबिक बनाएंगे तो दोनों आपका अच्छा हो जाएगा। फजर से पहले पढ़ने की आदत पड़ गई तो सुकून का वक्त होता है। फजर की नमाज पढ़ करके बैठ गए पढ़ने के लिए तो सुबह सुबह शादी ब्याह के पटाखे और तमाशे नहीं हुआ करते, सुकून हुआ करता है। फजर की नमाज पढ़ा, अल्लाह से दुआ किया, सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए, नाश्ता किया, अपने कॉलेज स्कूल चले गए, जोहर की नमाज अदा किया, फ्रेश हो गए, फिर उसके बाद कुछ पढ़ने बैठ गए। असर और मगरिब के दरमियान में नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद से अपने खेलने कूदने में लग गए, अपने जो है घूमने फिरने में लग गए। मगरिब के बाद फिर पढ़ने का, घर का काम करने का, अम्मी अब्बा का साथ देने का, बॉयज हैं तो कूड़ा कचरा फेंकने का, और लड़कियां अगर हैं तो अम्मी का घर में बर्तन किचन में साथ देने का, ये टाइम सही इस्तेमाल होता है। टू डू लिस्ट, टॉप 3 प्रायोरिटीज टुडे, मुझे आज सुबह से लेकर शाम तक 3 ये काम पूरे करने, मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बना लीजिए। एक आप टू डू लिस्ट बना लीजिए, एक इस तरह की डायरी या कुछ पेज बना लीजिए। उस पेज पर आप इस तरह से लिख के मार्क कर लें, लगा लें अपनी दीवार के ऊपर कि मुझे क्या करना है शाम तक, ताकि मैं एक काम पूरा कर लूं। हैव अ फॉलो थ्रू। मेरे रात के वक्त में बैठ करके देखिए कि ये काम मेरे पूरे हुए या नहीं हुए। अरे नहीं हुए, चलो आज 1 घंटा ज्यादा जाग जाएंगे, इसको फिनिश कर लेंगे। नहीं फिनिश हुए तो कल ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है काम कुछ और करना पड़े। लर्न टू से 2 लेटर वर्ड्स, नो कहना सीखिए, अपनी ख्वाहिशात को लगाम दीजिए। शाम के वक्त में 2 चीज टकरा गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का हमें ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करना है, 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और शाम के वक्त में आईपीएल मैच चल रहा है, बड़ा दिल लगा हुआ है इसके ऊपर। इसको आपने नहीं देखा तो कल पलट के भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं भी देखा तो कुछ आपकी जिंदगी में फर्क नहीं होगा। आपकी पसंदीदा टीम जीत गई तो आपके घर में 2 रुपए 4 रुपए वो नहीं पहुंचाने वाले। आपकी पसंदीदा टीम हार गई तो आपको कोई गुर्बत नहीं होगी। लेकिन इसके चक्कर में 10 मार्क्स आपके चले गए प्रैक्टिकल्स के, तो हो सकता है एग्जाम में इसी 10 मार्क्स की वजह से आप फेल हो जाए
और फेल होकर के पूरी जिंदगी फिर जो है झाड़ू लगाते हुए फिरे। विजुअलाइजेशन एंड ऑटो सजेशन, खुद देखो कि तुम नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूं, कल मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, कौन सा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, कौन सा टाइम अच्छा इस्तेमाल हुआ। डील लो प्रायोरिटी आइटम्स, डेलीगेट लो प्रायोरिटी आइटम्स। लो प्रायोरिटी आइटम्स में लड़कियां अगर हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको लेने के लिए मार्केट भागने की क्या जरूरत है, अम्मा भी ला सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब्बा भैया भी ला सकते हैं। बॉयज हैं तो छोटी छोटी चीज के लिए भागे फिर रहे हैं, कोई मार्केट जा रहा है तो ला दो, इस टाइम मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ूंगा। ये एक्शन प्लान तैयार करें, और जब एक्शन प्लान आपका सही तैयार होगा तो आपके सामने एक स्मार्ट गोल आना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक एंड सेल्फ। ऐसा होना चाहिए कि जो खुद हम कर सके, ऐसा प्लान कभी नहीं तैयार करना चाहिए जो हम ना कर सके। नंबर 2, एम फॉर मेजरेबल, कि हम शाम तक उसको जो है मेजर कर सकें कि किया या नहीं किया। ए फॉर अचीवेबल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव तरीके पर उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आर फॉर रियलिस्टिक एंड रिवॉर्डिंग, ये जो गोल तैयार किया उसका हमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हकीकी होना चाहिए, ख्यालों में नहीं होना चाहिए कि हम ख्यालों में भाई डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये कर लिया वो कर लिया। ये जो है मुंगेरी लाल के सपने या नहीं चला करते। टी फॉर टाइम बाउंड, इतने टाइम में मुझे करना है, ये है स्मार्ट गोल जो हमें करना चाहिए। और लास्ट में 5 पिलर्स आप तैयार कीजिए। नंबर 1, डिफाइन योर रोल, अपने रोल को डिफाइन कीजिए कि मेरी पहुंच क्या है, मेरा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग कौन सा है और मेरा सब्जेक्ट सबसे वीक कौन सा है। स्ट्रांग और वीक में बैलेंस बनाइए। स्ट्रांग है तो आप ये सोचेगा नहीं ये तो मेरे लिए पानी है, और आप जो है स्ट्रांग सब्जेक्ट की तैयारी छोड़ दी, एग्जाम हॉल में उसी को भूल गए। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे लिए। इसे दोनों में बैलेंस कीजिए, स्ट्रांग के ऊपर 20% और वीक के ऊपर 80% मेहनत कीजिए, बराबर से लेकर के चलिए और अपनी कमी को दूर कीजिए। डिफाइन योर रोल, अपने रोल को डिफाइन कीजिए। सेट योर मंथली गोल, हर महीने का एक गोल आप सेट कीजिए कि इस महीने के लास्ट तक मुझको ये प्रॉब्लम अपनी हल कर लेनी है। इतना अच्छा तैयार कर लेना है कि एग्जाम के करीब अपने नोटबुक में हम जो समरी लिखे हुए हैं उसको एक नजर देखें तो हमें सब पूरा का पूरा समझ में आ जाए, एक महीने में हमें पूरा कर लेना है। स्टेप 3, शेड्यूल योर वीकली टाइम, हर हफ्ते का एक टाइम टेबल बनाओ, हर हफ्ते का, कि सैटरडे से लेकर के थर्सडे तक, फ्राइडे तक हमें क्या चीजें करनी है। घूमने फिरने का भी बना लो, दोस्तों के साथ खुशगप्पियां और मस्तियां करने का भी बना लो, लेकिन हर वक्त खुशगप्पियां और मस्तियों में टाइम गुजारने पर टाइम ज़ाया हो जाता है। हर वक्त पढ़ना 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 ये भी मुनासिब नहीं है। घर के कामों की भी फिक्र करो ताकि तुम्हें पता चले कि बिजली का बिल कैसे पे होता है, तुमको पता चले कि दूध वाले का पैसा कितना दिया जाता है, क्या रेट है, तुमको पता चले कि सब्जी कैसे आती है, सब्जी का रेट अप एंड डाउन कैसे हो रहा है। पढ़ने पढ़ने में तुम्हें पता ही ना चले कि आलू जो है 10 रुपए मिल रहा है कि 15 रुपए मिल रहा है। घर के भी काम करो, झाड़ू लगाओ, कचरा ले आकर के खुद डस्टबिन में डाल करके आओ, क्योंकि जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बनना है। लड़कियां हैं तो घरों में खाना पकाने का ढंग सीखें, होटल के खाने से बहुत जिंदगियां नहीं गुजरती हैं, सेहत खराब हो जाती है। अडॉप्ट ए डेली 80-20, डेली 20% ठीक है मस्तियां करो, वक्त जाया करो, कोई हर्ज नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन 80% टाइम जो तुमने बनाया है उस टाइम के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारो। और स्टेप 5, एक्ट इट नाउ, अभी से उसको शुरू कर दो। ये सोचो कि कल शुरू करूंगा तो कल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, कल हो सकता है परसों, कल तो कल 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 कभी आया ही नहीं है। एक आदमी कहते मैं कल दूंगा, कल पहुंचे तो मैंने कहा था कि कल दूंगा ना, तो कल कभी आता कहां है। तो हमारे और आपके लिए जो ये चीजें हैं, उन चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने आप को हम समझें और अपने गोल को हम समझें, अपने रोल को हम समझें। और अल्लाह ताला ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है, टाइम दी है, और टाइम 10 से लेकर के 20 साल वालों के बीच के हाथों में सबसे ज्यादा होता है कि वो अपने आप को जिस तरफ से चाहे मोड़ ले। 20 के बाद कम होना शुरू होता है, फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसे आती कि पलटने का कोई चांस नहीं रहता है। उस वक्त कोई मदद नहीं करेगा, अम्मा अब्बा भी नहीं मदद करेंगे कि हम बहुत खिला चुके, जाओ तू हमें अब आकर ला करके खिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हम सबको वल अस्र कह के कसम खा करके
इन्नल इंसान लफी खुस्र कह करके कहा, ईमान रखो, अल्लाह पर यकीन रखो और अल्लाह के बंदे बन जाओ, नेक काम करो और हक पर कायम रहो और सब्र पर कायम रहो, और अच्छी सेहत अल्लाह ने दी है, सेहत की कदर करो, सेहत को बनाओ, रात रात भर जाग करके दिन दिन भर सो करके सेहत को ज़ाय मत करो, और जो है जंक फूड खा करके एडिक्शन मत पैदा करो, पेट को खराब मत करो। सेहत अच्छी है तो ईमान भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेहत अच्छी रहेगी इंसान सेहत के साथ नमाज पढ़ेगा। हदीस में आता है मिनल क़वी खैरुम मिन ज़ईफ़, कि ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से एक दर्जा बढ़ा हुआ है। आज सुकून है, काम कर लो, कल सुकून नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हासिल होगा। और हदीस के मुताबिक 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। इसी तरह से टाइम इज लाइफ, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या अचीव किया, और सही अचीवमेंट के खातिर जो है हमारे ऊपर और आपके ऊपर ये ज़रूरी है कि हम और आप टाइम को बाकायदा शेड्यूल बना करके करें कि आज ये करना है, प्रायोरिटी बना करके करें। प्रेजेंट इसलिए ये गिफ्ट कहा जाता है, इसलिए कि इस वक्त जो टाइम है, आज का जो टाइम है हमारे हाथ में, ये गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से गुजर जाएगा तो पलट कर वापस आने वाला नहीं है। और इसी तरह से टाइम को जो वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखो, और टाइम को जो बर्बाद करने वाली चीज़ें उससे अपने आप को दूर रखो, और अपने आप को मोबाइल की गुलामी से बचाओ। एक्शन तैयार करो, निगेटिव थिंग्स अपने दिमाग से निकालो, निगेटिव लोगों से दूर भागो, फेल होने के डर से किसी चीज़ को मत छोड़ो, रिस्क उठाओ, हिम्मत करो, हौसला करो, फट से किसी चीज़ के बारे में एक्ट मत करो, और अपने टाइम को नमाज के मुताबिक ढाल करके पढ़ने की कोशिश करो, तो इसमें सवाब भी मिलेगा, फरिश्तों की तरफ से रहमत भी बरसेगी, और नमाज और नूरानियत भी आएगी, और दुआएं भी जो मांगेंगे वो कबूल होगी, और हमारे सब्जेक्ट भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ, गोल बनाओ, और उसी के मुताबिक अमल करो। ये एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। कैरेक्टर के लिए टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा अहम होता है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इस सिलसिले में गौर व फिक्र करके अपने आप को टाइम के मुताबिक और वक्त के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत दी है, जो वक्त दिया है, उस पर सही तरीके से अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको टाइम को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए।